galo gumi na makaja do na silog tom nam lega bai ngok awam ne pars meralo private lo mu parsen papal jipanam nap ok lega al jam do na galo gadam ei ok news takan gadan dalam do na ok awam da aga dubri kuda mamuam ne 2 years lega ba dexina selegella ba nidri do na amma bolongo awam ay ag dol pe awam agre man munam 2 years lega ba direct hostel lagrela pune ba dun ma apo kuma ok lega ngo silok version dun ahoge application am laji ta ba My name is Inam Kamki and today I'm being felicitated from gold medalist, being the gold medalist in Master of Arts in English from Rajiv Gandhi University from the batch 2022 to 2023. So since I'm attending this program for the very first time, हम यही बोलेगा कि ये ज़्यादा तो हम पता नहीं है इसके बारे में, तो आज फर्स्ट टाइम है तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया है हम लोग का जनरेशन के लिए, नेक्स्ट आने वाला जनरेशन के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये प्रोग्राम जो बहुत इनकरेजिंग है। हम कभी सोचा नहीं था कि आज हम ये दिन में हम जो सबका सामने फेलिसिटेट होगा मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश का गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत इनकरेजिंग है। तो आगे जाके भी हम चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन उसको फेलिसिटेट हो या मत हो, आगे ज़रूर अटेंड करे ताकि वो लोग फील कर सके कि फ्यूचर में वो लोग कैसे कैसे करके अपना यंगर जनरेशन को मोटिवेट करना है इसका थ्रू से। प्लीज़ वर्क हार्ड ऑन योर ड्रीम्स एज मच एज यू कैन, एज हार्ड एज यू कैन, बिकॉज यू आर द वन हु कैन ओनली फुलफिल योर ड्रीम्स। Others are only there to support you, but never gonna fulfill your dream for you. Only because of them I could achieve this far. Only because of them I could stand in front of you all guys today. So yeah, I would like to thank you, both of them, from the bottom of my heart. Thank you, Mommy and Papa, and I love you the most. Such initiative is excellent because today, for example, I was invited to be a resource person to speak about career counseling and career guidance to the students, mainly those who have passed class 10th and 12th. And we had a lot of achievers also who got into different medical engineering. So they were felicitated today. So this gives a lot of motivation to the youngsters to work harder in life. And my main objective of today's presentation was how to take up the academic challenges and how to be prepared oneself for the future, because the education in 21st century has changed a lot. There are a lot of new things to learn about and how to use technology effectively. And I today also spoke about the good and bad effect of the smartphone. So how youngsters can use the technology in an effective manner in the pursuit of education. So such kind of program where there is like academic component in it, I think it's excellent. This is a very, very good initiative by Galo Welfare Society. And on the foundation day, they are not only felicitating the achievers, but also giving proper kind of a guidance to the youngsters who are going to take up class 10th and class 12th examinations. Yes. व्यूअर्स नमस्कार सभी को। आज का जो कार्यक्रम था ये गालो वेलफेयर सोसाइटी का फेलिसिटेशन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। विशेष करके जो यूथ अचीवर्स हैं उन लोगों को इन्होंने जो फेलिसिटेट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि समाज में कई बार होता है बच्चों में टैलेंट होते हैं, बच्चे उभर के आते हैं, लेकिन कई बार बिना प्रोत्साहन के, है ना, कोई उनको फेलिसिटेट या प्रोत्साहित नहीं करने से बच्चे जो है जिस तरह से टैलेंट होते हुए भी कई बार वो हतोत्साहित हो करके बच्चे उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितना उनको बढ़ना चाहिए। तो आज का जो कार्यक्रम था इसमें जो अचीवर्स को तो फेलिसिटेट किया ही, उनमें से एक मैं भी हूँ। उसके लिए मैं गालो वेलफेयर सोसाइटी का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल के द्वारा। और इसमें जो रिसोर्स पर्सन भी आए थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे चीज़ें बताई हम लोगों को, बच्चों को भी। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और मेरा विषय था पीएचडी का टॉपिक में गालों पर ही, गालो स्त्रियों पर
तो गालो स्त्रियों को लेकर के उनके विविध जीवन के जो आयाम है मैं जो देखती आई हूँ, बचपन से लेके गालो लड़कियाँ जो है जिस तरह से अपने परिवार के लिए सहयोग देती हैं। छोटी सी उम्र की बच्ची भी अपने पीठ पर अपने भाई को लाद करके खेतों में, गांव में आज भी ये सिलसिला जारी है। गांव में खेतों में बच्चे जो है, लड़कियां खास करके अपने भाइयों की पालन पोषण की जिम्मेदारियां संभालती हैं। थोड़ी और बड़ी होने पर घर परिवार के बागडोर सब कुछ संभालती है। माँ के लिए बहुत ही सहायिका होती है। और शादी के बाद भी बेटियां जो है गालो, जिसे दूना कहते हैं, दूना जो शादी हो जाती है उसके बाद भी वो लोग वहाँ से भी अपने परिवार के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। परिवार के हर तरह की सुख दुख में साथ देती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमारे जो गालो लोक साहित्य में इनके बारे में कई सारे गीत, गालो लोक कथाएँ हैं, गाथाएँ हैं, तो इन सब को समेट करके मैंने अपने पीएचडी का जो मेरा विषय रहा है, गालो अरुणाचल प्रदेश के गालो लोक साहित्य में स्त्री जीवन की विविध आयाम एक अध्ययन, तो उससे समेट करके मैंने जो थीसिस लिखा उस पर गालो वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे आज सम्मानित किया। उसके लिए मैं एक बार फिर आपके चैनल के द्वारा हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोशिश पुरजोर मेरी भी जारी है कि हमारे गालो समाज में जो लोक साहित्य में जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें मैं अपने लेखन के द्वारा उभार कर आप सबके सामने लाऊं। शुक्रिया। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रितपाल सिंह और मैं पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। और आज हमने एक अनाउंसमेंट की है एज अ हेड फैकल्टी ऑफ सिविल सर्विसेज मेंटर इंस्टीट्यूट ईटानगर। वी हैव कोलैबोरेटेड विद गालो वेलफेयर सोसाइटी सो एज टू ब्रिज द गैप ऑफ मनी एंड एजुकेशन। हम APCS का एग्ज़ामिनेशन एज वेल एज UPSC की तैयारी ऑन द लाइन्स ऑफ दिल्ली करवाएंगे हियर इन ईटानगर एंड ऑल्सो इन द गालो बेल्ट लाइक बसार एंड आलो। और इसमें हमने जो स्कॉलरशिप प्लान की है कि हम ये चाहते हैं कि पैसा किसी के जीवन में रुकावट ना बने। हम 3000 रुपीज़ पर मंथ में इंटीग्रेटेड कोर्स प्री और मेंस का ईटानगर, बसार और आलो में वी विल बी स्टार्टिंग सून। और अगर इस माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है टू फंड इज़ एजुकेशन, तो वो बिना हिचकिचाए हम तक पहुँचे, गालो वेलफेयर सोसाइटी तक पहुँचे और अपने सपनों को पूरा करें। तो बाय दिस आई रिक्वेस्ट कि आप इस मैसेज को पूरे घर तक पहुँचाओ सो दैट कि हर आदमी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ले सके। थैंक यू।